Well, so you have prepared a profile, right? But which profile you have prepared? Show me. You have written here resume, but you said that you have prepared a what CV? Okay, you have prepared a profile? No. Anyone? Which profile you have prepared? CV or resume? You have not mentioned anything, but according to you, what is that one? Okay, okay. Anyone else? CV, curriculum vitae or vitae. Okay. Resume. What is the difference between CV and resume? It's a pure traditional format. We need to change that one. What is the difference between CV and resume? We need to change it also. Is there any difference between CV or resume, or it's quite normal? What is CV? Exactly the same as resume. Is there any difference? Yes or no? It is a traditional format. CV or resume, is there any difference between CV or resume, or it's quite normal? There is no difference in between CV or resume. Tell me. या फिर two of things are the synonyms of a profile called profile. यानी कि प्रोफाइल बोला जाता है चाहे सीवी और रेज्यूमे दोनों सेम होता है. क्या होता है? रेज्यूमे एक ही पेज में होता है परफेक्ट, और दो पेज लगता है, दो या तीन ज्यादा लगता है. ओके परफेक्ट. एनीथिंग एल्स? सो गॉट अ क्लियर आइडिया और यू गॉट समथिंग दैट. मुझे पहले बताओ कि डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? So according to his point of view, CV used for your academic, show your academic qualification, resume used to show your job experience, working experience. Okay, fine. Anything else? There is no such concept. CV is for fresher, a resume is for experienced person. You said no, exactly like the same. Not like that. Because maximum people they do think CV is for experienced people, resume is for fresher people, or maybe vice versa. People used to think, maximum people. This page have share something different, but maximum people used to share the same concept. But there is no such concept. CV is for your experience of fresher, or resume is for your experience of fresher. Right. What is the concept? The concept is something different. There is another concept, or there is another term called biodata. Then what is that one? You said about CV resume. What is exactly biodata? You connect something about CV. CV is for academic qualification. CV is used in one page, or resume is for 2 pages. Like that one you have said something. But what is about biodata? नेम एड्रेस डालना है, वो तो आपका इनर कंटेंट हो गया. बट मुझे पता बायोडाटा क्या होता है, किस लिए यूज होता है? शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ व्हाट? करिकुलम. हाँ, शॉर्ट फॉर्मेट करिकुलम बाइटे मींस शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ सीवी. हाँ. इफ यूर अप्लाइंग, बंद कर लो, रिड्यूस कर लो उसे. किसके पास है? काना नहीं है क्या? किसने ऑन किया था? ओके फाइन. तो क्या हो गया आपका? व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब पोर्टल, आप देखे होगे जब जाके कोई जॉब पोर्टल में अप्लाई कर रहे होगे, वहां पे लिखा होगा अपलोड योर प्रोफाइल. प्रोफाइल लिखा रहता है. दे हैव नॉट मेंशन कि आपको सीवी अपलोड करना है, रेज्यूमे अपलोड करना है, बायोडाटा अपलोड करना है. ओनली इट इज रिटन देयर अपलोड योर. कभी अपलोड किए हो? देखे हो या नहीं देखे हो? अपलोड किए कि नहीं किए? ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, naukri.com हो गया, फ्रेशर सॉल्ट हो गया, मॉन्स्टर हो गया, और बहुत सारे होते हैं, 10 या 12 होते हैं. कभी किए हो कि नहीं किए हो? हमें क्या लिखता है? अपलोड प्रोफाइल और सीवी. प्रोफाइल. राइट नाउ इट इज आवर चॉइस which kind of profile or which profile you need to upload. First of all, before that we need to know what is the difference between CV, resume and biodata. Clear? There is 3 concepts or 3 terms. What is that one? One is your CV. One is resume. One is write down profile preparation. Give the heading profile preparation. पहले लिखो biodata. Write down first what? Biodata. लिखो biodata is a biographical, और लिखो it is a biographical
details of a candidate. Biodata is the biographical details of a candidate. Biodata is the biographical details of a candidate. So what is exactly biographical details? क्या होते हैं biographical details? Or personal details. Biographical details means personal details. What is exactly personal details? Date of birth, address, or academic qualification, professional qualification, or strength, hobby, weakness, or interest, or achievement, or photo. Okay, photo और ये सब कुछ नहीं होता है. Biographical details means the personal details. Write down. The first priority is your personal detail. Write down. First priority is your personal details. Write down. Second priority, educational qualification. Third priority is experience. Second हो गया आपका educational qualification. First is your personal details. Second priority is your educational qualification. Third priority is your experience. ब्रैकेट में लिख लो if you have any. अगर आपके पास experience है तो mention करो, नहीं है तो skip it. Simple, as simple as that one. Clear? Experience if you have any. Clear? Okay, right now first. What is exactly a personal detail? As you said, your name, date of birth, these are the general detail. ये सब में होता है, बायोडाटा में भी होता है, आपका CV में भी होता है, आपका resume में भी होता है. Personal details means your height, weight, any mark is there in the body or not, moles or maybe any mark, or maybe you are going to share about the zodiac sign, caste, religion, blood group. मैंडेटरी होता है बायोडाटा में डालना. क्या? कास्ट, रिलीजियन एंड ब्लड ग्रुप इज मैंडेटरी टू मेंशन इन योर बायोडाटा. क्लियर? ब्लड ग्रुप, ये सारा, ये तीनों चीजें क्या होता है आपका मैंडेटरी होता है. उसके साथ साथ आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, आपके बॉडी पे कहीं पे मार्क है कि नहीं है, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, कि आप कैसे दिखते हो, ये सारी चीजें अगर मेंशन करते हो तो ये क्या हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिटेल्स. आपका एड्रेस, दिस इज ऑल्सो योर पर्सनल डिटेल, लेकिन आपका जनरलाइज होता है, सब चीजों में होता है. बायोडाटा में एक्स्ट्रा क्या होता है, दैट आई एम शेयरिंग. क्लियर? नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, या एड्रेस हो गया, ये सारे ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर कंपलसरी सब में होता है. बट पर्सनल डिटेल में ये सारी चीजें और भी ज्यादा चीजें बायोडाटा में ऐड होता है. क्या हो गया आपका, योर हाइट, वेट, योर स्किन कलर, एनी मार्क इज देयर इन द बॉडी और नॉट, दिस ऑल थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट वन, योर कास्ट, रिलीजियन एंड ब्लड ग्रुप, यू नीड टू मेंशन दैट वन. क्लियर? ओके, मुझे भी बताओ कि ये सारे इन्फॉर्मेशन किससे चाहिए, किससे चाहिए बाद में देखेंगे. उसके बाद क्या हो गया आपका सेकंड क्वालिफिकेशन, sorry, second priority is your educational qualification. That means what the education you have pursued or what the education you have completed, you need to share that one in a higher to lower order, as like your self introduction. Self introduction में कितना था, maximum 2, but in profile you need to mention each and everything. सारे चीजें mention करोगे. That is your educational qualification. उसके बाद क्या हो गया आपका एक्सपीरियंस. अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है आपको वहाँ पे मेंशन करना है. अभी मुझे बताओ कि ये जो पर्सनल डिटेल किससे चाहिए होता है, कहाँ पे पर्सनल डिटेल देते हो. या गेट इन. गवर्नमेंट जॉब में, एग्जैक्टली, क्योंकि कास्ट के हिसाब से आपका कोटा सिस्टम होता है. यस सर नो? रिलीजन के हिसाब से आपका कोटा सिस्टम होता है. तो गवर्नमेंट जॉब में आपका बायोडाटा यूज होता है. परफेक्टली सेट. और कहाँ पे यूज होता है? इन मैट्रिमोनियल साइट्स. अरे अभी नहीं करना है, बाद में करोगे कि नहीं करोगे? आपको नहीं करना है, आपके घर में कोई करता होगा कि नहीं करेंगे? आपके बड़े भाई होंगे, या फिर यू आर हैविंग ए सिस्टर और ब्रदर, एनी ऑफ योर सिबलिंग्स, दे विल बी हैविंग दैट वन. तो जब आप मैट्रिमोनियल साइट में अप्लाई करो, अभी तो नहीं है, आपका जॉब लग जाएगा, आपका एज हो जाएगा, फिर जाके शादी करोगे. सो व्हेन यू विल बी अप्लाइंग इन ए मैट्रिमोनियल साइट, अगर आपके पास कोई सेट नहीं है, आपके पास कोई नहीं है, आपका खुद का जो ब्रोकर होता है ना, उसके ना होकर आप क्या करें, ऑनलाइन पे कहीं पे अप्लाई करे हो, तो बाय दैट टाइम दे विल बी आस्किंग फॉर योर बायोडेटा. वहाँ पे क्या चाहिए आपको? बायोडेटा चाहिए.
तो बायोडाटा में ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि बायोडाटा में क्या होता है, आपका कास्ट रिलीजन जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ यू नीड टू मेंशन योर जोडियक साइन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ए मैट्रिमोनियल साइड। गवर्नमेंट जॉब में जोडियल साइन ला के भेज दोगे तो वो आपको गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वो आपके लिए लड़का या लड़की ढूंढने के लिए लग जाएंगे, राइट। सो डोंट मेंशन योर जोडियक साइन इन इफ यू आर अप्लाइंग योर बायोडाटा इन ए गवर्नमेंट जॉब और फॉर ए गवर्नमेंट जॉब। या तो ये हो गया आपका यूज ऑफ योर बायोडाटा। तो जैसे कि इन्फॉर्मेशन था कि पहला क्या था आपका पर्सनल डिटेल, तो मुझे बताओ गवर्नमेंट जॉब वालों को आपका पर्सनल डिटेल चाहिए कि नहीं चाहिए? शादी में लड़का या लड़कों वालों को आपका पर्सनल डिटेल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए होता है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, कास्ट रिलीजन, ये भी चाहिए होता है। ब्लड ग्रुप, ये भी चाहिए होता है। उसके बाद क्या हो गया आपका सेकंड इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन के हिसाब से लड़का या लड़की आपका मैच किया जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको बायोडाटा चाहिए होता है। एक्सपीरियंस में क्या हो गया, लिखोगे शादी का एक्सपीरियंस नहीं, 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं, शादी में फ्रेशर हो, ऐसे करोगे क्या? नहीं करोगे ना। इट इज फॉर योर गवर्नमेंट जॉब। अगर जॉब के लिए अप्लाई करो तो वहाँ पे लिखा हुआ है जॉब, अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है मेंशन दैट वन, अगर नहीं है तो स्किप कर लो। अगर शादी के लिए अप्लाई करो तो वहाँ पे मत लिखना कि फ्रेशर या फिर मैरिड 2 ईयर 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये नहीं होता है। फॉर द मैरिज इट इज नॉट देयर, बट फॉर गवर्नमेंट जॉब यू विल बी मेंशनिंग दैट वन, क्योंकि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस लिखा रहता है, इसलिए लिखा है कि इफ यू हैव एनी मेंशन, नहीं है तो स्किप कर लो। क्लियर। बायोडाटा कहाँ पे यूज होता है, उसके नीचे लिखो यूजेस, हेडिंग दो यूजेस। जिसका एक्सपीरियंस है वो सेकंड शादी में अप्लाई करेगा, वो इतना अंदर मत जाओ। It will be changed the topic. Write down uses. Government job and matrimonial sites. Government job and matrimonial sites. Clear? तो मुझे बताओ कि ये आपका जितना डिटेल अब तक आप लिखे हो, द डिटेल यू हैव मेंशन्ड हियर, राइट नाउ 3 डिटेल्स आर देयर, राइट। सो हाउ मच पेज इट विल टेक टू राइट ऑल द थिंग्स, कितना पेज लेगा ये सारे लिखने के लिए? 1 पेज इज एनफ? यस और नो? तो बायोडाटा के लिए आपका पेज लिमिट कितना होता है, नीचे लिखो पेज लिमिट। पेज लिमिट इज 1 पेज ओनली। ये वेरी करता है, अगर आप फ्रेशर हो यानी कि 1, 2, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो बायोडाटा में एक ही पेज में हो जाएगा। मान लो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, 50 नहीं होगा तो तक मर जाओगे, तो लंबा आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है यानी कि बहुत सारे कंपनी आपने चेंज किए होगे, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर आपने चेंज किए होगे, तो उस हिसाब से आपका 2 पेज भी हो सकता है। बट फॉर ए फ्रेशर इफ यू आर हैविंग 2 to 3 ऑफ एक्सपीरियंस, 1 पेज इज एनफ एंड इट इज सफिशिएंट फॉर यू। क्लियर। ये हो गया आपका बायोडाटा। यानी कि बायोडाटा कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे आपका मैट्रिमोनियल साइट्स होता है और आपका कहाँ पे होता है, जॉब, गवर्नमेंट जॉब ओनली, प्राइवेट में नहीं होता है, ओनली गवर्नमेंट जॉब। क्लियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, लिखो सीवी। राइट डाउन सीवी इज ए लैटिन टर्म, लैटिन मत लिख लेना, किसने लिखा था। सीवी इज ए लैटिन टर्म दैट मीन्स, सीवी इज ए लैटिन टर्म दैट मीन्स कोर्स ऑफ योर लाइफ। CV is a Latin term that means course of your life. CV is a Latin term that means course of your life, right? Course of your life क्या होता है? Course ये जो कर रहे हैं ना, ADCNC course, ADCHNM course of your life. What is the meaning of course of your life? उसका meaning क्या हो गया? Exactly. That means in the entire life what you have done, you need to mention that one. यानी कि अब जिंदगी भर आपने जितने सारे चीजें किया है सारे आपका वहाँ पे मेंशन होगा। अगर मेंशन हो तो क्या बन जाएगा आपका, that is called course of your life, right? So for an example, the example is like this. मान लो ये मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किसी का भी हो सकता है। आपने क्या किया, हाई फाई हो गया क्या? अभी नहीं किया, बाद में करो, क्या प्रॉब्लम पड़ता है, लिखने से क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद नो,
समझ में आ गया? जानबूझ के लिखा है इसलिए ब्रैकेट में कॉमर्स और आर्ट्स, साइंस नहीं। क्यों नहीं उसके बाद में बताऊंगा। इरेजर, मान लो आप अभी यहां पे हो, ये सब खत्म करके गए हो, वहां पे ऊपर हो, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, ये हो गया आपका कोर्स ऑफ योर लाइफ। यानी कि जिंदगी भर जितने सारे कोर्स किए हो, जितने सारे अचीवमेंट आपके पास है, जितने सारे जॉब एक्सपीरियंस आपके पास है, ये सारे अगर मेंशन करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? दैट इज कॉल्ड योर सीवी। क्लियर हुए या नहीं हुए मुझे बताओ? क्लियर हो गए? रेज्यूमे में सारे चीजें मेंशन नहीं होता, इसे जानबूझ के इधर उधर करके मैं लिखा हूं। मान लो ये जो जॉब आपका एक्सपीरियंस था ना, ये आपका एक बीपीयू में था, कॉल सेंटर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। उसके बाद क्या हो गया आपका? ये जॉब आपका रिलेवेंट फील्ड में था, मान लो डिजाइन इंजीनियर। उसके बाद एमटेक किया, उसके बाद यहाँ पे हो, उसके बाद आएंगे। क्लियर हुए कि नहीं हुए? बिकॉज सीवी मीन्स द कोर्स ऑफ योर लाइफ, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव डन इन योर एंटायर लाइफ। इफ यू आर गोइंग टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड योर कोर्स ऑफ योर लाइफ। क्लियर? हाँ, इन ए सीक्वेंस वे, सब आपका सीक्वेंस में ही आएगा, ऐसे नहीं कि आपका इधर उधर करके नहीं लिखो, इन ए प्रॉपर सीक्वेंस वे। इफ आर मेंशनिंग एवरीथिंग, इट इज योर सीवी। याद रखना हमेशा, इट नीड टू मेंशन इन हायर टू लोअर ऑर्डर, हमेशा ऊपर से नीचे ही आएगा। या मैंने 10th ऊपर लिखा था, ऊपर क्या लिखा हूँ मैंने? जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है आपका, उससे आपका नीचे तक आएगा। क्लियर? डिस्कस करेंगे, ऐड करना है ना एक्सपीरियंस, लिखना क्या है आपको? सीवी यानी कि मान लो यहाँ पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर, यहाँ पे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है। यू मेंशनिंग ईच एंड एवरीथिंग, सारे चीजें जहां पे मेंशन कर रहे हो, दैट इज योर सीवी। क्लियर? उसके बाद लिखो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, राइट। यहां पे आपको हेडिंग क्या देना है? यहां पे एक हेडिंग दे दो, यूजेस। हाँ, एक होगा पेज लिमिटेशन। इसका ये मत बना, ये मत लिखो, ये क्यों लिखोगे आप? ये एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ। जैसे आपने बायोडाटा में लिखा था ना यूजेस, और क्या लिखा था आपने? पेज लिमिटेशन। इसका भी सेम होगा, एक लिखो पेज लिमिटेशन, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, और एक लिखो यूजेस, उसके लिए एक स्पेस छोड़ दो। कुछ चेंजेस है? कुछ चेंजेस है कि नहीं है? लिखो रेज्यूमे, हेडिंग दो रेज्यूमे, पेज छोड़े हो ना, क्योंकि लिखोगे वहां पे, याद रखना। लिखो रेज्यूमे। रेज्यूमे इज ए फ्रेंच टर्म, resume is a French term that means, resume is a French term that means summary of your life. Summary of your life. Summary. That means summary of your life. Clear? Right now, what is exactly summary? Remember your school days, right? When you have given your 10th or 9th exam. There is a passage in 50 words. So you need to summarize in 300 words. Yes or no? 50 वर्ड का एक पैसेज आपको मिलता था, आप उसे क्या करते थे? समरी करके कितना वर्ड में लिखते थे? 300 वर्ड्स और 120 वर्ड्स। यस और नो? यानी कि 50 वर्ड को आपको 1/3 करके लिखना है 150 में। यू सेड लाइक दिस ना? अरे क्या होता है? There is a passage in 300 words, you need to read it and you need to summarize in 50 words. आप क्या बोले? हाँ, 50 को 300 में कर लेंगे। Yes or no? Summary means you need to sort it exactly as you said. It may be 1/3, it may be 1/4, depending on the
different exam are having that different concept. That means we are going to read a passage completely, what we understood, what are the findings of this passage, we need to mention that one in a summary. That is called your summary. Exactly same. What you did in an entire life, that is your course of your life. If I are going to summarize according to the requirement, that is my summary. Clear or not? That means what I did my entire career, that is my course of my life. And I customize that one, I summarize that one according to the requirement, that is my resume, or that is my summary. उसके बाद एक लिखो. Resume is a short slash customize slash edited slash short, edited, customize, tailored, TAILORED, tailored. लिखो पहले, मीनिंग बात में. tailored, 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 ILORED, tailored. Short, customize, edited, tailored details of a candidate. तो क्या लिखे अभी यहाँ पे? रेज्यूमे इज ए शॉर्ट यानी कि ये तो पूरा आपका लॉन्ग था कि शॉर्ट था? इसे क्या कर लिया आपने? शॉर्ट कर लिए. शॉर्ट डिटेल्स ऑफ ए कैंडिडेट. या फिर रेज्यूमे से एडिटेड डिटेल्स, आप इसे एडिट किए या फिर जैसे था वैसे कॉपी पेस्ट कर लिए. जिंदगी में आपने जितने सारे अचीवमेंट या फिर जितने सारे क्वालिफिकेशन या फिर जितने सारे चीजें आपके पास था, उसे आपने एडिट किया या वैसे की वैसे ही लिख लिया. एडिट किया ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडिटेड. उसके बाद क्या लिखा आपने? कस्टमाइज. कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट यू आर गोइंग टू कस्टमाइज इट. यस और नो? दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिक्वायरमेंट यू हैव कस्टमाइज दैट वन. अगर बीपीयू का होता कंपनी तो क्या करते? ये लिखता कि नहीं लिखते? लिखते ना. तो यानी कि कंपनी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे क्या करें? कस्टमाइज करो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कस्टमाइज डिटेल्स. उसके बाद क्या लिखो? टेलर्ड. टेलर्ड का मतलब क्या होता है? एडिटेड हो गया ना, बोला ना अभी. उसके बाद लास्ट क्या है आपका? टेलर्ड. मुझे बताओ, when the tailor man came to take the measurement of yours, is it taken only yours measurement and prepared everyone's uniform, or you have taken each and everyone's measurement? Each and everyone's measurement. That means when you are going to prepare your profile according to the company requirement, you need to prepare accordingly. For an example, it's a designing company. Your profile must be what you can reflect the designing skill that are there within you. If this is a production company, you need to hide the designing skill, and you need to mention each and every production or the practical skill that you are having within you. यानी कि जो कंपनी जिसका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप क्या करोगे? अपने स्किल को कस्टमाइज करोगे, डिजाइन करोगे, टेलर्ड करोगे. टेलर्ड मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. इफ यू आर मेकिंग द थिंग्स, दैट इज कॉल्ड टेलर्ड. क्लियर? डिफरेंस पता चला? सीवी और रेज्यूमे में डिफरेंस क्या है? यानी कि अगर जितने सारे चीज़ें मेरे पास है, सारे अगर मैंने वैसे की वैसे ही मेंशन कर लिया, दैट इज माय सीवी. सीवी मीन्स क्या होता है? करिकुलम वाइटे और विचाए. राइट. सीवी क्या हो गया आपका? दैट मीन्स द कोर्स ऑफ योर लाइफ. जिंदगी भर जितने सारे चीज़ें किए थे अगर मेंशन करोगे तो सारा आपका क्या बन जाएगा? सीवी बन जाएगा. अगर आपने क्या किया? उसे कस्टमाइज कर लिया. उसके अंदर आपने क्या किया? हाथ पैर मार के उसे कस्टमाइज कर लिया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे स्क्वीज कर लिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा? रेज्यूमे बन जाएगा. बिफोर 90s देयर इज नो सच कंसेप्ट कॉल्ड सीवी और रेज्यूमे. सीवी रेज्यूमे का कंसेप्ट 90 से पहले नहीं था. ओनली वन कंसेप्ट, दैट इज बायोडेटा. कुछ भी करो, बायोडेटा दे दो. दिक्कत कहाँ पे आया? फॉर एन एग्जाम्पल, राइट नाउ यू आर इन द एज ऑफ मे बी इन बिटवीन 25 to 30. उसके अंदर आप हो, आपके शादी करने के लिए आपके लिए लड़का या लड़की ढूंढा जा रहा है. राइट. तो आपका दूर के रिश्तेदार कोई अंकल थे या आंटी थे जो एक कहीं पे जॉब कर रहे हैं, और आपको उन्होंने कॉल करके डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, डायरेक्टली मांगा कि आपका बायोडाटा मुझे भेज दो. तो आप अभी कौन सा बायोडाटा भेजोगे? और सेम टाइम में आपके लिए जॉब कहीं पे भी कर रहे हो और आपके लिए लड़का लड़की ढूंढा जा रहा है, या फिर जॉब छूटने का तैयार कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें कर रहे हो. तो आप वहाँ पे कौन सा प्रोफाइल सेंड करोगे? मुझे बताओ. बायोडाटा ही है क्या? सीवी 90 से पहले कहाँ पे बायोडाटा आ गया? तो यानी कि आपने जो बायोडाटा, अभी कन्फ्यूजन हो गया, शादी वाला बायोडाटा सेंड करूँ या कंपनी वाला बायोडाटा सेंड करूँ? शायद मेरे लिए लड़की या लड़का ढूंढा जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा? जो शादी के लिए जो बायोडाटा प्रोफाइल बनाया था मैंने, उसे सेंड कर देता हूँ.
तो आपका दूर के जो रिश्तेदार थे, अंकल या आंटी, जो आपके लिए उनका कंपनी में वैकेंसी था, तो अप्लाई आपको वहाँ पे क्या कर रहे थे, आपका प्रोफाइल लेके अप्लाई करने वाले थे। अभी अप्लाई कंपनी जॉब छोड़ के आपके लिए लड़का या लड़की ढूंढने के लिए लग जाएंगे। तो ये सारे बहुत सारे कन्फ्यूजन जब आ गया, टू रिमूव ऑल दिस कन्फ्यूजन, टू न्यू टर्म्स इंक्लूडेड, दैट इज कॉल्ड योर सीवी और रेज्यूमे। यानी कि 90s के बाद आपका सीवी और रेज्यूमे को यूज़ करने लगा डिफरेंट पर्पज में। अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो यू नीड टू यूज़ योर सीवी और रेज्यूमे, गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो तो बायोडाटा, उसमें अगर जोडियाक साइंस और बाकी सारे चीज़ें डाल रहे हो तो आपका कहाँ पे चले जाएगा, मैट्रिमोनियल साइट में। नॉर्मल चीज़ें डाल रहे हो तो कहाँ पे हो जाएगा आपका, गवर्नमेंट जॉब में। क्लियर या नहीं हुए? सीवी रेज्यूमे में डिफरेंस पता चला? ओके, राइट नाउ अभी राइट डाउन इन सीवी में जो लिखे थे ना, सीवी में क्या लिखे थे, पेज लिमिटेशन लिखो, पेज लिमिटेशन फॉर फ्रेशर 1 पेज, सीवी लिखे हो ना, हाँ, 1 पेज इज मिनिमम फॉर फ्रेशर, 1 पेज इज मिनिमम, 2 पेज इज मैक्सिमम। नो 2 पेजेस मिनिमम, 3 पेजेस मैक्सिमम फॉर फ्रेशर। फ्रेशर के लिए कितना होता है, 2 पेज मिनिमम होता है और 3 पेज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फॉर फ्रेशर 2 पेज इज मिनिमम, 3 पेज इज मैक्सिमम। जहाँ पे 1 किए थे वहाँ पे 2 कर लो, जहाँ पे 2 किए थे वहाँ पे 3 कर लो। उसके बाद लिखो फॉर एक्सपीरियंस 2 to 3 इज मिनिमम, 3 to 4 इज मैक्सिमम। 2 to 3 is minimum, 3 to 4 is maximum. टू टू थ्री इज मिनिमम, 3 to 4 इज मैक्सिमम। अभी आप पूछोगे कि मिनिमम तो मिनिमम होता है, 2 to 3 कैसे मिनिमम होगा? ये सुनो, कैसे हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। मान लो इफ ए पर्सन हैविंग 2 year ऑफ एक्सपीरियंस, ए पर्सन हैविंग 20 year ऑफ एक्सपीरियंस, दोनों में कोई डिफरेंस है या सारे सेम है? अलग है ना। तो जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, उसका मिनिमम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 मैक्सिमम हो जाएगा। जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है उसका 3 मिनिमम हो जाएगा, 4 मैक्सिमम हो जाएगा। सो इन दैट लाइट मैक्सिमम एक्सपीरियंस पीपल आर हैविंग डिफरेंट पेज लिमिटेशन एंड फ्रेशर आर आल्सो हैविंग डिफरेंट पेज लिमिटेशन। क्लियर? अभी लिखो उसका यूजेस मुझे बताओ कि आप, दैट मीन्स दिस इज जनरल डिटेल्स ऑफ योर्स। आपका ये सारे जनरल डिटेल हो गया। तो ये जनरल डिटेल किससे चाहिए होता है? नहीं, हाँ, कंपनी क्यों चाहेगा आपका सारा डिटेल? वो इतना सारी चीजें लेके क्या करेगा? एनीथिंग एल्स? हाँ, सोचो कुछ एटलीस्ट। हाँ, नेचर, एचआर कंपनी में ही होता है ना। आप मुझे पूछ रहे थे ना, प्लेसमेंट आपका प्रोफाइल मांग रहा है, कौन सा प्रोफाइल मांग रहा है? क्यों? प्राइवेट कंपनी। अरे प्राइवेट तो हो गया कि सीवी रेज्यूमे मांगे। देखो, जहां पे जो आपको जॉब दे रहा है, कुछ नहीं, सुनो, जहां पे आपको जॉब मिल रहा है, फॉर एन एग्जांपल सीटीटीसी इज ए प्लेटफॉर्म, इट्स ए प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, और ये क्या कर रहा है, आपको जॉब लेके दे रहा है। सीटीटीसी नो दैट यू आर ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू आर ए मैकेनिकल इंजीनियर। So if a company came and he is asking we are require some mechanical engineers, वो डिज़ाइन हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, या फिर क्वालिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर इलेक्ट्रिकल ऑल्सो द सेम। यानी कि अगर कोई कंपनी आ रहा है, मांग रहा है कि मुझे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होता है, तो आपके पास जितने भी सारे क्वालिटीज़ होगा वो सारे आपको मेंशन यहाँ पे होगा। तो सीटीटीसी को, या फिर आपका प्लेसमेंट को, कोई भी प्लेसमेंट हो गया, या फिर आपका ऑनलाइन जॉब पोर्टल का भी काम क्या होता है? प्लेसमेंट और जॉब पोर्टल में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है प्लेसमेंट और जॉब पोर्टल? सेम ही होता है। प्लेसमेंट आपका फिजिकली बैठा होता है, ऑनलाइन आपका क्या होता है? ऑनलाइन जॉब पोर्टल का। देयर इज नो डिफरेंस। यानी कि अगर आप कहीं पे आपका प्रोफाइल अपलोड कर रहे हो जॉब पाने के लिए, तो कौन सा प्रोफाइल अपलोड करोगे? सीवी। क्योंकि मान लो कोई कंपनी आता है, वी रिक्वायर ए पर्सन हु इज गुड इन डिजाइनिंग एंड ऑल्सो गुड इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होगा? अगर बीपीओ में काम करोगे तो आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा होगा। दैट मीन्स इफ यू आर नॉट गोइंग टू मेंशन हियर यू हैव ए वर्किंग एक्सपीरियंस इन बीपीओ, देन हाउ द कंपनी विल नो दैट यस यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन? क्लियर और नॉट?
यानी कि आपके पास जितने सारे स्किल है सारे क्या करोगे वहाँ पे अपलोड कर लोगे। स्किल के बेसिस पे कोई भी जॉब आ जाएगा तो द प्लेसमेंट और द जॉब पोर्टल दे आर गोइंग टू आस्क यू कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यू वांट टू जॉइन और नॉट। और यहाँ पे ही कस्टमाइज करके दे देते तो क्या होता आपका, उसी कंपनी आता तो अप्लाई करते, नहीं आता तो अप्लाई नहीं करते। ये सर नो क्लियर। यानी कि जहाँ पे आपका जनरल डिटेल चाहिए होता है इन प्लेसमेंट और इन जॉब पोर्टल्स यू नीड टू अपलोड योर सीवी। रेज्यूमे कहाँ पे अपलोड होता है? कहाँ पे होता है? पर्टिकुलर जॉब, एक कंपनी आया है जो बोलता है कि मुझे डिज़ाइन इंजीनियर ही चाहिए होता है, तो आप क्या करोगे, डिज़ाइन इंजीनियर का सारा स्किल लिख के लेके जाओगे या सब लेके जाओगे? इफ यू विल बी मेंशनिंग ईच एंड एवरीथिंग, दीज आर जस्ट ए गार्बेज इन योर प्रोफाइल। ये सर नो, ये सब आपके प्रोफाइल में कचरा है कि नहीं है? मुझे चाहिए कि आपके पास डिजाइनिंग स्किल है कि नहीं है, मुझे दिखाओ। और आप लेके जा रहे हो कि मेरे पास इसके स्किल है, मेरे पास बीपीयू का स्किल है, मेरे पास 2 साल का वहाँ पे स्किल है, चाहिए क्या मुझे? नहीं, मुझे रिलेवेंट स्किल चाहिए। मुझे अगर आपने इसके रिलेवेंट में जॉब किया था मुझे वो चाहिए, आपने बीटेक किया था मुझे वो चाहिए, क्योंकि रिलेवेंट फील्ड में है तो सारी चीज़ें मुझे मेंशन करना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो मैंने +2 किस में किया था? यू सेड ना आर्ट्स क्यों, साइंस क्यों नहीं था? अगर साइंस किए होते तो यहाँ पे lateral and LLO के होते। वाई? बिकॉज साइंस इज कनेक्टेड विथ डिप्लोमा, ये कनेक्टेड होता है। अगर साइंस किए होते कनेक्टेड हो गया, अगर आप +2 कॉमर्स या आर्ट्स में किए होते तो ये आपका कनेक्टेड नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन नहीं है आपका। यानी कि मैंने 10th किया कनेक्टेड, उसके बाद डिप्लोमा किया, उसके बाद बीटेक किया, फिर मैंने जॉब किया उसी पर्टिकुलर रिलेवेंट फील्ड में, फिर मैंने एमटेक किया एंड राइट नाउ हियर आई एम इन योर कंपनी। यानी कि कंपनी को जो रिक्वायर है अगर सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, इट लुक्स वेरी डिसेंट, ये प्रोफाइल विल बी लुक वेरी डिसेंट। अगर कंपनी को कुछ और चाहिए होता है, आप सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, इट लुक्स वेरी व्हाट, इट्स वेरी इनडिसेंट, इट लुक्स वेरी मेस अप टू द कंपनी। वो ढूंढते रह जाएगा कि मेरे स्किल के रिलेवेंट कोई है कि नहीं है। क्लियर। यानी कि जहाँ पे आपको जनरल डिटेल मांगते हैं, तो आपको कोई भी फील्ड में जॉब करने का मन कर रहा है और आप जनरल डिटेल दे रहे हो आपको जॉब मिलने के लिए, तो वहाँ पे कौन सा प्रोफाइल अपलोड करोगे? सीवी। रेज्यूमे कहाँ पे अपलोड करोगे? जहाँ पे आपको ऑलरेडी जॉब रोल पता है कि मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उस जॉब का जो भी स्किल चाहिए होता है वो सारे दिखा के वहाँ पे अप्लाई करोगे। क्लियर। तो उसके लिए लिखो उसका पेज लिमिटेशन रेज्यूमे में। हाँ लिखो, इसका यूजेस लिखो ना, प्लेसमेंट एंड ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। सीवी का लिखो यूजेस में, प्लेसमेंट एंड ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। उसके बाद लिखो रेज्यूमे का यूजेस कहां पे होगा? फेस टू फेस इंटरव्यू। यानी कि जब कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, वहां पे आप क्या करोगे? कौन सा प्रोफाइल लेके जाओगे? रेज्यूमे लेके जाओगे। अगर और लिखो पहले FTF इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू, FTF फेस टू फेस इंटरव्यू। उसके बाद लिखो ऑनलाइन कंपनी पोर्टल्स। ऑनलाइन कंपनी पोर्टल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब पोर्टल एंड कंपनी पोर्टल? साइट तो खुद का होता है, वो मैटर नहीं होता है। मैटर होता है कि स्पेसिफिक कंपनी नहीं, स्पेसिफिक जॉब होता है, वो तो होता है कैरियर पेज। लेकिन कंपनी पोर्टल में क्या होता है? कंपनी मेंशन करता है कि मुझे इस वैकेंसी के लिए चाहिए। ये सुनो, जॉब पोर्टल में आप अप्लाई करते हो, आपके प्रोफाइल की किस स्किल को पकड़ के वो देखते हैं कि आपके रिलेवेंट कोई कंपनी है कि नहीं है। क्लियर। यानी कि कंपनी पोर्टल में मान लो मुझे एक डिजाइन इंजीनियर चाहिए, मुझे एक प्रोडक्शन इंजीनियर चाहिए, मुझे एक मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए, मैं वहां पे स्पेसिफिक मेंशन करूंगा कि मुझे मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए, तो आपका स्किल है तो मुझे अप्लाई करो। लेकिन ऑनलाइन जॉब पोर्टल में क्या करते हो? आप दिखाते हो कि मेरे पास ये स्किल है, अगर स्किल के रिलेवेंट कोई कंपनी है तो मेरे पास लेके आओ। डिफरेंस पता चला? यानी कि अगर अभी कंपनी ऑनलाइन जॉब पोर्टल में अप्लाई कर रही हो, वहां पे लिखा होगा अपलोड योर प्रोफाइल। कौन सा प्रोफाइल अपलोड करोगे? ऑनलाइन जॉब पोर्टल क्या करोगे? कौन सा प्रोफाइल? अरे दिख क्या रहे हो? अब तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो क्या? सीवी करोगे, क्योंकि आपका जनरल डिटेल वहां पे मांगा जा रहा है। अगर आप क्या करें, वहां पे कंपनी पोर्टल में अप्लाई करें। मान लो अभी आपका टाटा का एक वैकेंसी निकला हुआ है एंड यू अप्लाई फॉर दैट वन, वहां पे लिखा है कि अपलोड योर प्रोफाइल। व्हिच प्रोफाइल राइट नाउ यू आर गोइंग टू अपलोड? रेज्यूमे। क्लियर। ओके, अभी मान लो कि आप अभी एलिजिबल हो गए हो ना, राइट? सो वन कंपनी केम एंड दे डायरेक्टली आस्क यू फॉर द इंटरव्यू।
अभी आपको बुला के जा रहा है कि सेकंड हाफ में आपका इंटरव्यू है, तो आपका प्रोफाइल लेके जाओगे, कौन सा प्रोफाइल लेके जाओगे? क्लियर हो गए? जहाँ पे आपको पता है कि क्या जॉब है, क्या स्किल चाहिए, मैं सेम स्किल अगर दिखाऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा? रेज्यूमे बन जाएगा, यानी कि वहाँ पे रेज्यूमे लेके जाओगे। जहाँ पे आपको पता नहीं कि जॉब क्या है, आपको बस एक कंपनी चाहिए होता है, आपका जॉब चाहिए होता है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आपको नहीं पता है, तो वहाँ पे कौन सा प्रोफाइल अपलोड करोगे? CV करोगे, ए जनरल डिटेल ऑफ योर्स। हाँ, क्यों नहीं होगा? फ्रेशर, देखो जो एक बहुत ही फ्रेशर है उसके पास सारे रिलेवेंट स्किल है, तो उसके लिए CV और रेज्यूमे लगभग सेम होता है, पूरा सेम नहीं होता है। क्यों सेम नहीं होता है? सुनो, जब आप वहाँ पे स्किल मेंशन कर रहे होगे, क्या आप आपके अलग से स्किल मेंशन करो जो कंपनी को नहीं चाहिए? कंपनी का डिजाइन इंजीनियर चाहिए होता है, आप क्या मेंटेनेंस स्किल वहाँ पे मेंशन करोगे? नहीं करोगे, तो कैसे हो गया आपका सेम? CV में दोनों स्किल वहाँ पे मेंशन होता है, तो स्किल में चेंजेस होता है, बाकी सब सेम होता है। मान लो एक फ्रेशर है जिसका करियर सिमिलर वे में गया है, ऐसे नहीं कि करियर इधर उधर चला गया आप बोल रहे मैं फ्रेशर हूँ, ऐसा नहीं होता है। जिसका मान लो एजुकेशन ही ऐसे गया, उसने 10th किया, उसके बाद उसने डिप्लोमा किया, फिर उसने B.Tech किया, उसके बाद जाके जॉब किया, मान लो M.Tech खत्म, छोड़ दो, M.Tech ही छोड़ दो, ठीक है, इतना ऊपर नहीं जाएंगे। तो उसने जाके जॉब किया, फिर जॉब नहीं किया, B.Tech के बाद यहाँ पे आ गया है वोकेशनल ट्रेनिंग करने के लिए। फ्रेशर है, कहीं पे ईयर गैप नहीं है, तो उसका जो CV और रेज्यूमे लगभग सेम हो जाएगा, स्किल में ही थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अगर आपका करियर ऐसे गया है, यू मे बी फ्रेशर, यू मे बी ए जॉब एक्सपीरियंस, तो आपका अलग अलग ही होगा। यहाँ पे मान लो आपने 10th किया था, ठीक है, 12th किया था आपने, यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स में, लेकिन आप फ्रेशर हो, तो सेम बन जाएगा क्या? अलग बनेगा। यानी कि ये जो आपका 2 साल कभी भी मेंशन नहीं करोगे, दिखाओगे नहीं, यस नो। इसके बाद और भी होता है, ITI कर लिया आपने, क्लियर? क्लियर हुए कि नहीं हुए? CV रेज्यूमे बैटर में डिफरेंस क्या होता है? पक्का? ओके, चलो अभी जाते हैं कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। राइट, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, अगर उसमें जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वी आर हैविंग हाफ एन आवर ओनली। तो मैं आपको एक PDF सेंड कर दूंगा, इन दिस PDF यू कैन क्रॉस चेक व्हाट आर द कंटेंट वी नीड टू मेंशन इन ए प्रोफाइल। राइट नाउ वी नीड टू नो व्हाट आर द कंटेंट आर देयर इनसाइड द प्रोफाइल, उसे कहाँ पे मेंशन करना है, लेफ्ट में करना है कि राइट में करना है, कहाँ पे करना है? राइट, प्रोफाइल इज ऑफ हैविंग 2 टाइप्स। वन इज प्रोफाइल, जो आपका फॉर्मेट होता है ना, टेम्पलेट होता है, इज ऑफ 2 टाइप। हाँ लिखो, resume page limit for fresher 1 page is minimum, 2 page is maximum। resume का पेज लिमिट लिखो, for fresher 1 page is minimum, 2 page is maximum। for experience 1 to 2 pages is minimum, 2 to 3 pages maximum। सेम कॉन्सेप्ट, जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उस हिसाब से पेज आपका वेरी होता रहेगा। क्लियर? व्हाट कोर्स ड्यूरेशन? वो तो कंपलसरी है, वो तो कंटेंट के अंदर है ना। मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या कंटेंट डालना है, व्हाट यू सेड दैट इज इनसाइड द कंटेंट, इट विल टेक अ होल डे। 12th किस में किए थे? दैट आल्सो क्वेश्चन। साइंस में, उसके बाद डिप्लोमा किए थे, तो साइंस मेंशन होगा वहाँ पे। वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो अगर आपका साइंस की, देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लिखा था कि आर्ट्स और कॉमर्स, साइंस लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अगर साइंस होगा तो यहाँ पे साइंस मेंशन लिख लो, ठीक है। वाई? बिकॉज नहीं कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पे 2 साल लिखे हुए तो पता चल जाएगा उस रिक्रूटर को। यहाँ पे आप ईयर मीन्स, इसमें इतने 2-3 पेज लिखे हो ना, ये तो आपका आधा पेज ही जाएगा, उसके अंदर नहीं डिटेलिंग नहीं करोगे क्या? डिप्लोमा कौन सी कॉलेज से करे थे, कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड के अंदर आ रहे हो, या फिर उसके बाद आप लिखो कौन सी ईयर में पास आउट हुए थे, सारी चीज़ें मेंशन होगा वहाँ पे। क्लियर? उसके बाद लिखो, हो गया ना आपका डिफरेंस पता चल गया। अभी मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है, बट राइट नाउ अभी सुनो, उसके बाद जाके आप जाके आज प्रोफाइल बनाना, कल मुझे लेके आना, कल बनाओ परसों लेके आना, ठीक है। प्रोफाइल टेम्पलेट इज ऑफ 2 टाइप, और प्रोफाइल इज ऑफ 2 टाइप। व्हाट आर दे? वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ योर प्रोफाइल एंड वन इज मॉडर्न फॉर्मेट ऑफ योर प्रोफाइल। व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ योर प्रोफाइल? ट्रेडिशनल होता है ना, जो पहले लाइन करके लिखते हैं, पेज करके लिखते हैं, जो आप कुछ लोगों का ट्रेडिशनल था, मैंने बताया था कि आपका ट्रेडिशनल है, राइट। मॉडर्न फॉर्मेट क्या होता है? मॉडर्न फॉर्मेट, इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ए मॉडर्न फॉर्मेट प्रोफाइल, इट नो नीड टू फॉलो योर पेज लिमिट। पेज लिमिट वहाँ पे फॉलो नहीं होता है।
अगर ट्रेडिशनल फॉर्मेट बनाओगे, ट्रेडिशनल फॉर्मेट में सिर्फ पेज लिमिट नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होता है। टेक्स्ट हाइट होता है, हेडिंग का टेक्स्ट हाइट अलग होगा, कंटेंट का टेक्स्ट हाइट अलग होगा, लाइन के बीच में गैप भी वहाँ पे मेंटेन होता है। कंटेंट के लाइन के बीच में कितना गैप होगा, कंटेंट और हेडिंग के लाइन में गैप कितना होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंटेन होता है। इतने झंझट में क्यों जाना है? ट्रेडिशनल तो ट्रेडिशनल ही होता है। एक तो ट्रेडिशनल हो गया, उसके बाद इतने सारे चीज़ें वहाँ पे कर रहे हो, सो डोंट गो विद द ट्रेडिशनल फॉर्मेट। लेकिन याद रखो कि ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है, क्या क्या होता है, लेट मी शेयर ऑल्सो दैट वन। ट्रेडिशनल फॉर्मेट अगेन इज ऑफ टू टाइप। व्हाट आर दे? वन इज कॉल्ड बुलेटिन फॉर्मेट, वन इज योर टेबुलर फॉर्मेट। व्हाट इज एग्जैक्टली बुलेटिन फॉर्मेट? आप मुझे दिखा रहे थे ना, नहीं, यू हैव शोन मी दैट वन। उनका प्रोफाइल क्या था? बुलेटिन में डॉट डेट आता है। उनका फॉर्मेट कैसा था? एक मैं दिखा रहा हूं आपको, दिस इज वन फॉर्मेट। This is one format. ये एक फॉर्मेट हो गया। अगर आपका सारे बुलेटिंग यूज कर रहे हो, जो आपका डॉट लाइन हो गया, एरो मार्क हो गया, ये सारे यूज करके कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ए बुलेटिंग फॉर्मेट। अगर आपका सारे बॉक्स में होता है, यानी कि आपका किस में होता है, टेबल में होता है, दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्मेट और बॉक्स फॉर्मेट। Either you can prepare a profile in tabular format or box format, or maybe prepare a profile in bulletin format. याद रखना दोनों को भी मिक्स नहीं होता है। इसे छोड़ के हमारे बच्चे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? नहीं नहीं नहीं, बॉक्स नहीं यार, ये प्रोफाइल है, क्या बन गया? ये हो गया A4 शीट पेपर। यहाँ पे होता है करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, ये सारे। जब आता है आपका एजुकेशन, यहाँ पे बन जाएगा आपका बॉक्स। उसके बाद फिर से लाइन, फिर से लाइन, फिर से लाइन, फिर से लाइन, फिर से लाइन। कुछ गलती किया था इसने। यू कैन मिक्स बोथ द फॉर्मेट। ईदर यू वांट टू, इफ यू वांट टू प्रिपेयर ए बॉक्स फॉर्मेट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, यू नीड टू प्रिपेयर इन द बॉक्स फॉर्मेट। इफ यू वांट टू प्रिपेयर ए बुलेटिन फॉर्मेट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, यू नीड टू प्रिपेयर इन bulletins only. You cannot mix both the formula. Folding of your hands is a completely negative body language, so we are not going to maintain. Why? Because I am sharing all the things. क्योंकि ये जो आदतें हैं ना, आपका फ्यूचर में जाके बहुत ही प्रॉब्लम करेगा। What you are doing right now, it's completely subconsciously. अभी अब तक अगर आपको इसे रेक्टिफाई नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। जैसे कि keeping your legs inside the what you can say, under the chair, it is what? Casual mindset, relaxing, casual mindset, right? So it will be, if you're having a distance between your two legs, that means broad mind, the world is mine. तो ये सारे चीज़ें आपको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? बॉडी लैंग्वेज पढ़ लिए, अगर ऐसे बैठोगे तो क्या फ़ायदा उसका? कहाँ पे था मैं भूल गया। क्लियर? अगर आप ऐसे बनाते हो, दैट इज योर ट्रेडिशनल फॉर्मेट। अगर आप ऐसे सारे बनाते हो, देखो आप खुद ही ऐसे बनाए हो, राइट? हाँ, वही तो मैं गलत है, गलत है, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, ठीक है? तो क्लियर हो गए? बॉक्स में बनाना है तो पूरा बॉक्स में बनाओ। अगर आपको इसमें बनाना है, किसमें, बुलेटिन में बनाना है, तो पूरा बुलेटिन में बनाओ। बट फिर से क्यों बनाना है? ये दीज आर द ट्रेडिशनल फॉर्मेट ओनली। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, next, or the modern format is called infographic template. That means information is going to convert into graphical format. आपके जितने सारे information है वो किस में convert हो गया? Graphical format में हो गया. For fresher, if you are having 1 or 2 year of experience, 1 page is enough. और ट्रेडिशनल फॉर्मेट बना रहे हो तो आपका पेज लिमिट भी मेंटेन करना पड़ेगा, टेक्स्ट हाइट भी मेंटेन करना पड़ेगा, लाइन गैप भी मेंटेन करना पड़ेगा, सब मेंटेन करना पड़ेगा।
इन इन्फोग्राफिक टेम्पलेट नो नीड टू मेंटेन एनीथिंग, इफ इट लुक्स गुड, लुक्स डिसेंट, सारे अलाइनमेंट प्रॉपरली है, कैसे करना है तो बता दूंगा, तो इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। और बहुत सारी चीज़ें भी इसके बाद होता है। क्लियर? इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, वेरी डिसेंट, एंड इट इज गोइंग टू बी व्हाट यू कैन से गिव ए प्रॉपर लुक ऑफ योर प्रोफाइल, जबकि ट्रेडिशनल फॉर्मेट बहुत ही ट्रेडिशनल दिखाई देता है। क्लियर? ओके, अभी आपको क्या करना है, कंटेंट कहाँ कहाँ पे डालना है। मुझे बताओ क्या क्या कंटेंट प्रोफाइल के अंदर आप लिखोगे, क्या क्या लिखोगे? पहले नेम हो गया, उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आपका फोटो हो गया, और आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल हो गया, परफेक्ट, और लोकेशन है आपका, एड्रेस हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका मेन कंटेंट में, हेडिंग में आ गया। फिर आपका क्या हो गया, करियर ऑब्जेक्टिव, परफेक्टली सेट। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद याद रखना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर टू लोअर में आएगा, लेकिन 2 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, सब होगा। रेज्यूमे होगा तो कस्टमाइज करके 10th तक आना है। अगर सीवी होगा तो बीच में भी जो होगा सारे मेंशन करके 10th तक आना है। क्लियर? उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, the vocational training program you have pursued or you have undergone, or maybe any internship or apprenticeship program you have done. Okay, anything else? Next, if you are having experience, as I said in self introduction, it's of 2 type. अगर आपका एक्सपीरियंस रिलेवेंट नहीं है तो कहाँ पे आ जाएगा, आफ्टर योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर एक्सपीरियंस रिलेवेंट है तो कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, हाँ कहाँ पे, वो में कहाँ पे होगा, ऊपर, प्रोफाइल से ऊपर। Before your educational qualification, after your career objective, you need to mention your experience. Clear? उसके बाद और क्या मेंशन करोगे, प्रोजेक्ट, परफेक्टली सेड, और अचीवमेंट, एग्जैक्टली, और स्किल्स, फाइन, और लैंग्वेज नोन, परफेक्टली सेड, और पर्सनालिटी, पर्सनल डिटेल्स, ये हो गया ना, आपने बोला था, वो तो हो गया आपका, पहले कवर कर लिया उसे। और सर्टिफिकेशन, ओके फाइन, और स्ट्रेंथ, हॉबी, इंटरेस्ट, ग्रेट, और परफेक्टली सेड, आपका प्रोफाइल बन गया। और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। याद रखना डिक्लेरेशन ट्रेडिशनल फॉर्मेट में होता है, मॉडर्न फॉर्मेट में डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? तो ये बन गया आपका प्रोफाइल, इतना ही आपको कंटेंट डालना है। बट राइट नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच कंटेंट यू नीड टू मेंशन इन व्हिच साइट, कौन सी कंटेंट कहाँ पे डालोगे। अगर आपका ट्रेडिशनल फॉर्मेट बनाओगे, याद रखना जो पीडीएफ आपको मैं भेजूंगा दैट इज कंप्लीटली ट्रेडिशनल फॉर्मेट। क्यों ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, क्योंकि ट्रेडिशनल फॉर्मेट में आपको पता चल जाएगा कंटेंट में क्या क्या लिखना है। क्लियर? ओके, उसके बाद और क्या हो गया आपका, मॉडर्न फॉर्मेट में कहाँ पे क्या डालना है। पहले दिख लो आपका ट्रेडिशनल फॉर्मेट कैसा होता है, उसके बाद आपको दिखाएंगे।